So now we have to discuss about this attach accept message. So as I said, this is also a NAS message which will be created by the MME NAS. It's MME NAS which is sending the attach accept to the UME NAS. So as you know, directly it cannot go, so it is going via eNodeB through the S1AP message, and that S1AP message is the initial context setup request, and then from eNodeB to UE, there is a RRC connection reconfiguration message. We'll see here, see, MME to eNodeB, it's an initial context setup request. Within that, attach accept is transmitting. Now eNodeB to UE RRC connection reconfiguration. Within that, attach accept is transmitting. Why? Because MME to eNodeB, they are communicating through the S1AP protocol. So initial context setup request is the S1AP message, and within that NAS message means attach accept is encapsulated. Then eNodeB to UE RRC message, that message is RRC connection reconfiguration, and then within that attach accept is transmitting. So in the attach accept, this is the confirmation for the attach request message. Okay, now network has accepted your attach request. So what are the parameters will be transmitted within the attach accept? So within attach accept, the first parameter is the attach result. What is the use of this parameter? If you see the attach request message, in the attach request, there was one parameter, it's called the attach time. What was the use of this parameter? This parameter was telling whether you want to attach with 4G only or 4G and 3G both. So you is requesting. Request does not mean that your attach has completed. You is requesting. Now it's a network job who will give the confirmations. Yes, your request has partially accepted or fully accepted. Means suppose, for example, you can send, suppose your mobile, I'm network, suppose you send me the request that you want to attend Python and technology class both parallelly. Suppose you want to attend both class parallelly. So you send the request, you want to attach with both 4G and Python. But I am network, I know my resources, whether my Python resource is right now free or not. So when I confirm your request, then only you can attach. You send the request, it does not mean that you can attach with both 4G and Python. It's based on my confirmation. Once I give that confirmation, yes, you can attach with both 4G and Python. Then now attach, you're fully successful. Or I can confirm partial attach, means I can say, no, you attach with only 4G. You requested for both, but I confirm only for 4G. So this might be possible. So that's why in the attach accept, it will send the attach result parameter. Within the attach result, network will tell which attach network has accepted. So suppose, for example, your mobile, if they can send combined
EPS IMSA attach. Suppose if a mobile requested for both attach, but even though it may be possible, network can say EPS only. गारंटी नहीं कि आप दोनों अटैच रिक्वेस्ट करोगे तो नेटवर्क दोनों अटैच दे देगा. और if they have the resource, they can say okay, combined EPS IMSA attach. So this is called the partial attach. Means if you requested for both but network given EPS only, तो आपने दोनों के में अटैच होने के लिए रिक्वेस्ट किया बट नेटवर्क आपको सिर्फ 4G में अटैच होने के लिए बोल रहा है, 3G में भी रिसोर्स नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल अटैच सक्सेसफुल. So first element is the attach result, then second parameter good T. As you know, good T is the UE identity which will be allocated to the UE. Who allocate? That is the MME. MME allocate the good T to the UE within which message? Within this attach accept. So good T भी MME send करेगा UE को. Then most important TAI list. If you remember, I taught you when I was teaching you the LT geographical area, I taught you about the TAI list. So TAI list के बारे में कौन बोलेगा? अंसारी आप बोलोगे? अंसारी कुछ लोग आंसर देते हैं जैसे चैतन्य, मोहित, अब्दुल और सबसे अच्छा प्रिपरेशन आपके बीच में सद्दाम का. 3-4 लोग आंसर दे रहे हो, बाकी लोग सब शांत हैं. TAI लिस्ट अंसारी, चैतन्य, Yes, sir. tell me what is TAI list? दोस्त कल्पेश, Yes, sir. what is TAI list? Tracking area identity is a unit within PLMN ID. मैं TAI लिस्ट बोल रहा हूँ थोड़ा सा. अब बिगनिंग के क्लास का वीडियो सुनो कल्पेश, तो सारे टेक्निक तुम्हारी चल जाएगी. पूरे कॉन्सेप्ट उल्टे हैं तुम्हारे. नहीं सुनोगे तो क्या होगा? अभी आप हार्ड वर्क करोगे फिर भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप हो पाएगा. अभी देखो सद्दाम से पूछूंगा, 1 मिनट में आंसर देगा. सद्दाम, व्हाट इज TAI लिस्ट? सद्दाम अनम्यूट करके बोलो तुम लोग. Yes, sir. हाँ, व्हाट इज TAI लिस्ट? Sir, जो each tracking area must be uniquely identified. Tracking area list की जो होता है. सद्दाम तुम पे ट्रस्ट करके इतनी बड़ाई किया कि सद्दाम तो मतलब पता ही होगा, तुम तो मुझे क्यों नहीं बोल्ड कर दिया? म्यूट कर लिया. मोहित, हाँ sir. So tracking area is used to identify UE when the UE is in idle state. So there is a list of tracking area identities where the areas where UE can be in the idle state. I'm asking about TAI list. I'm not asking about tracking area identity. Yes, दीपक गायकवाड is correct. वो लिखा है कुछ टाइप करके. I taught ना कि one TAI list may have one tracking area, more than one tracking area, maximum 6 tracking area can be in one list. When you will power on, it will get the TAI list. में कितने 2-3 बार यूज किया. पेजिंग में भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि नेटवर्क जो पेजिंग भेजना रहता है तो सिर्फ एक ईमेल भी नहीं भेजेगा. They will send to all TAI list within that tracking area. अब्दुल्ला नहीं है क्या? अब्दुल्ला अपना सही आंसर देगा. विश्वास तो सद्दाम को भी था लेकिन सद्दाम ने धोखा भी दिया. सद्दुल्ला छुट्टी पे. तुम लोग कुछ भी रिवीजन नहीं कर रहे, पता है क्या?
बस ब्लाइंडली आ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, इससे पता है कॉन्सेप्ट कभी भी बिल्ड नहीं होगा, ये जान लेना। और इब्रार तुम शाम में टूल का क्लास अटेंड करो ना। ये TI list, it will have the, Deepak have given the correct answer. Each tracking area list will have the multiple tracking area. So those list who will give to the UE, that is the MME जो हमसे मीटर में पूछता है कि when your UE will power on, how UE will know कि to which tracking area UE belongs, how UE will know कि किस TI list में ये UE belong कर रहा है. That's MME will send those TI list to the UE. मैं आपको बताया था पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट का कि ट्रैकिंग इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग अपडेट होते हैं, पीरियोडिक ट्रैकिंग अपडेट होता है, TI लिस्ट होता है, सब खा गए. सो दिस अगेन मैं नहीं जाऊँगा बताने के लिए, आप लोग रिवीजन करो प्लीज. TI लिस्ट ये भी नेटवर्क आपको बताएगा विद इन अटैच एक्सेप्ट मैसेज में. सेम वे एक होता है पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट. Means once some time will expire, automatically your mobile will start the periodic tracking area update. मैंने उस टाइम कितने अच्छे से बताया था तुम लोग को कि पीरियोडिक ट्रैकिंग अपडेट मोबाइल क्यों इनिशिएट करता है, क्या वजह है. यदि पीरियोडिक ट्रैकिंग अपडेट नहीं भेजेगा तो नेटवर्क मोबाइल को सोचेगा अनरीचेबल है. कुछ रिवीजन करने तुम लोग को टाइम चाहिए. हेलो. नो सर, ऐसा कुछ टाइम नहीं चाहिए. जस्ट प्लीज हैव अ आप, मोर रेगुलर रिवीजन. हाँ तो प्लीज़ आप पहले रिवीजन करते जाओ, तो क्या कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा. हाँ सो TI में अटैच एक्सेप्ट में ये TI लिस्ट सेंड करेगा. देन नेक्स्ट कंटेंट इज द अगेन योर पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट टाइमर वैल्यू. दिस T3412, दिस इज द पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट टाइमर. अच्छा अपना एक राहुल देता है आंसर. राहुल कहाँ आज, राहुल जाने आज. पीरियोडिक ट्रैकिंग एरिया अपडेट टाइमर, इसकी भी वैल्यू MME ही बताएगा UE को ई नोड बी में. आप समझो मेरी बात. अभी MME अटैच एक्सेप्ट मैसेज भेजेगा तो UE को पता चलेगा कि पीरियोडिकली कितने देर के बाद ट्रैकिंग एरिया अपडेट करना है. तो वैल्यू कौन सी यूज करना है UE खुद डिसाइड नहीं करेगा, UE को MME बताता है. किस मैसेज के अंदर, अटैच एक्सेप्ट के अंदर. देन नेटवर्क तुम्हारा SRVCC कैपेबल है कि नहीं है, CSFB कैपेबल है या नहीं है, ये सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारा नेटवर्क अटैच एक्सेप्ट के अंदर ही बता देगा. इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स रहेगी, बताएगा नेटवर्क कि हाँ वो CSFB सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, SRVCC सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो सारा इंफॉर्मेशन अटैच रिजल्ट के अंदर रहेगा, अटैच एक्सेप्ट के अंदर रहेगा. और क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स जब रहता है तो उसमें पेडियन गेटवे क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स में UE के लिए IP एड्रेस भी देता है. तो वो IP एड्रेस तुम्हारा जो ये मैसेज था इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट, उसके अंदर भेजता है उस UE का IP एड्रेस. प्लस जो तुम्हारा अभी QS पैरामीटर एलोकेट हुआ जो मैंने बताया था इनिशियल कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, वो सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारा इस इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट में लगेगा. देन नाउ कमिंग टू द RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, ये भी मैसेज में बताया हूँ. प्लीज आप मुझे बताओ इस मैसेज का कौन सा पैरामीटर है जिसके अंदर अटैच एक्सेप्ट होगा. RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन को पढ़ाया. अब मुझे बताइए
आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो अटैच एक्सेप्ट को कैरी करेगा? अटैच एक्सेप्ट कैरी करेगा तो कौन सा पैरामीटर? आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ाने को यूज है नहीं। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, एनीवन एल्स? सद्दाम आज तुम्हारा दिन नहीं है। So there's NAS PDU in the यस RRC करेक्ट। connection. उसके अंदर एक पैरामीटर है नैस पीरियू ना, वो आंसर होंगे। सो अभी अटैच एक्सेप्ट मैसेज को भेजना था तो नैस पीरियू के अंदर जाएगा, तो बिकॉज अटैच एक्सेप्ट क्या है, जस्ट उसको पहुंचाना है यूई तक। So that's for that RRC connection reconfiguration will be used. So here in the NAS PDU of the RRC connection reconfiguration carry the attach accept message, content to the same ही रहेगा, ये content attach accept। After then if you see कुछ भी नहीं बचे हैं, all message are just like acknowledgement। अभी देखो आप attach accept आ गया तो now this RRC connection reconfiguration network sends, so mobile will send the RRC connection reconfiguration complete. While I was teaching the RRC connection reconfiguration, that time I only said कि RRC connection reconfiguration complete, not containing any NAS information or RRC information. This is just only acknowledgement of RRC connection reconfiguration message. Initial context setup request to send initial context setup response. ये देखो अपलिंक है, अपलिंक, इसके बाद डाउनलिंक मैसेज नहीं, इसके बाद भी अपलिंक है। देखो क्यों, ये अटैच एक्सेप्ट का आंसर ये नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन। अटैच एक्सेप्ट का आंसर यहाँ पे है, अटैच कंप्लीट। सो दिस इज द अगेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अटैच एक्सेप्ट, मीन्स नाउ मोबाइल सेंड द अटैच रिक्वेस्ट, network send the attach accept parameter, so mobile is just only sending the acknowledgement, yes now I am attached with the network, so attach has completed। ये सारे मैसेज में कुछ भी कंटेंट नहीं है, जस्ट ओनली द एक्नॉलेजमेंट है इस मैसेज में। इफ यू विल सी हियर द टाइम योर मोबाइल इज सेंडिंग द अटैच रिक्वेस्ट मैसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन मुझे कल पे साहब बताइए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। कल्पेश Yes, sir. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और थोड़ा कल्पेश आप इसका आंसर बता सकते हो, बस थोड़ा सोच के बताना। द Sir. टाइम यूई विल सेंड अटैच रिक्वेस्ट मैसेज, जिस टाइम यूई अटैच रिक्वेस्ट मैसेज भेज रहा है उस टाइम आरआरसी का स्टेट क्या होगा और नैस का स्टेट क्या होगा? RRC पहले UE to NRB RRC ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजेगा CCCS नहीं वो तो ये मैसेज मैंने पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आरआरसी का स्टेट क्या है, नैस का स्टेट क्या है? आरआरसी का स्टेट कौन कौन से पता है ना? RRC ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं क्या एंड रीएस्टैब्लिश। कल्पेश नेक्स्ट मंडे से मैं कल्पेश एक नया बैच में शुरू करूँगा, ठीक है? इवनिंग में 8 o'clock ये टाइम है ना, ये टाइम है तो सुन लेना, ठीक है? तो पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारे खराब हो चुके हैं। दीपक आप बताइए, व्हाट विल बी द आरआरसी स्टेट एंड नैस स्टेट? सर जो आरआरसी स्टेट है वो आइडल स्टेट होगा। ओके, नैस का? और नैस का ईसीएम आइडल। और ईएमएम दो होते हैं ना इसमें, ईसीएम और ईएसएम और ईएमएम दो होते हैं ना? हाँ
इसमें ये सब रजिस्टर्ड और ईसीएम आइडल। अच्छा, EMM रजिस्टर्ड, ये आइडल, RRC आइडल और ECM आइडल, करेक्ट। राइट सर। सद्दाम आप क्या बोल रहे हो? सद्दाम खैर तुमसे देखो नहीं एग्री है, सद्दाम कुछ और बोल रहे हो। सर सद्दाम आप क्या बोल सर आरआरसी का कनेक्टेड स्टेट होगा हाँ और नास लेयर का रजिस्टर और कनेक्टेड मोड होगा। तो आज तुम जो है ना सद्दाम, तुम्हारे दिन सही में नहीं है आज। आज तुम चुप रहो, आज तुम्हारा बड़ाई किए तो आज तुम मुझे इंसल्ट करवा रहे हो। सर आरआरसी सेटअप कंप्लीट मैसेज के अंदर तो अभी ये अभी जाएगा ना। अभी मैं बात बोलता हूँ ना आंसर, बस जो तुम बोलो रिकॉर्ड है, मैं तुमसे डिबेट करता हूँ 2 मिनट के बाद। बाकी लोग को मौका दो ना, अपना इब्रार भाई है। इब्रार क्या बोलते हो, तुम्हारा RRC स्टेट नहीं स्टेट? आरआरसी जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो आइडियल में रहेगा। मुझे नहीं मतलब वो क्या रहेगा, मुझे सिंपल बताओ। अभी अटैच रिक्वेस्ट जा रहा है तो RRC का स्टेट बताओ, नैस का स्टेट बताओ। पूरी कहानी मुझे नहीं सुनने में इंटरेस्ट है। इब्रार म्यूट कर लो, इब्रार म्यूट कर लो। दीपक हो गया, सद्दाम हो गया, इब्रार हो गया, कल्पेश हो गया, ओनम। यस सर। तुम क्या बोले? आरआरसी तो आइडल। RRC सेटल होगा, नैस पेज टर्न कर रहे हो, आवाज़ आ रही है पहले टर्न कर दो, छोड़ दो, म्यूट कर लो। चैतन्य आप क्या बोलते हो? सर आरआरसी तो कनेक्टेड स्टेज में होगा सर। ओके, नैस नैस ईपीएस कनेक्शन मैनेजमेंट में से कनेक्शन स्टेट में जाएगा सर, रजिस्टर होके। तुम नैस कर कुछ भी बोल रहे हो। मोहित, अब लास्ट भी बचा है कि अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। मोहित, थॉमस, हाँ Sir, RRC will be in idle state. Then NAS EMM will be in registered state, and ESM state is idle. EMM क्या बोले? EMM is registered. ओके, थॉमस। RRC will be in connected state, sir. NAS, I didn't go through the video. ओके, और कौन बचा? अजलाल तो बोलेगा नहीं, वो तो म्यूट होता है। निखिल, सिचुएशन बहुत बुरी है। द करेक्ट आंसर इज RRC will be in connected state। सद्दाम और जो दूसरे लोग यहाँ करेक्टेड बोले थे वो करेक्ट है। इसके बाद से सद्दाम तुम्हारा बुरा दिन स्टार्ट हो गया था। NAS EMM will be here deregistered। अभी अटैच कंप्लीट होगा तब रजिस्टर्ड होगा ना। अभी तुम अटैच रिक्वेस्ट ही भेजे हो, और यदि तुम्हारा अटैच रिक्वेस्ट भेजने पे ही मोबाइल अटैच हो गया तो ये बाकी मैसेज क्या यहाँ पे मेरी शक्ल देखने के लिए आए हैं, वो भी शक्ल मेरी इतनी सुंदर नहीं है। ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब तो अटैच कंप्लीट होगा ना। इतना तो सिंपल सोचो ना, कॉल फ्लो पढ़ रहे हैं अटैच प्रोसीजर्स का, मीन्स दिस ऑल मैसेज ऑन सक्सेसफुली चेंज्ड, इट मीन्स दैट योर मोबाइल लैच विद द नेटवर्क। रिक्वेस्ट भेजने पे लैच नहीं हो जाते हैं। सो नाउ EMM विल बी इन डीरजिस्टर्ड। सद्दाम समझ में आता है? Yes, sir. कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? सर मैं पूरा अटैच प्रोसीजर का बात बोल रहा था। सद्दाम, अभी मैं क्या ना, तुम मुझे ना, तुम्हारे बगल से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे, मैं क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पे सर्किल दिया हूँ, जहाँ पे अटैच रिक्वेस्ट भेज रहा है वहाँ पे पूछ रहा हूँ।
और यदि पूरी अटैच की बात बोल रहे हो तो भी तुम्हारा आंसर गलत है। क्यों? यदि पूरा अटैच हो गया ना तो आरआरसी आइडल में चलाता है, तो तुम्हारा आरआरसी में आंसर गलत है। तो घुमाने की कोशिश मत करो मुझे। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, सर्किल दे चुका हूँ कि यहाँ पे आरआरसी का स्टेट्स क्या है। और यदि फिर भी अटैच कंप्लीट का बोले तो आरआरसी आइडल में होता है बाबू, तब आरआरसी कनेक्टेड नहीं होती है। कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया आज तक? नहीं सदा? सर। हाँ तो नहीं, तो कॉन्सेप्ट नहीं नहीं है, सर। तब ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जब तुम किसी को प्रपोज किए इसका मतलब क्या हो गया? प्रपोजल एक्सेप्टेड, उधर से भी कंफर्मेशन आनी चाहिए ना। यस सर। वही चीज यहाँ पे है। यदि मोबाइल ने अटैच रिक्वेस्ट भेजा है, डज नॉट मीन दैट योर मोबाइल रजिस्टर्ड। इधर से भी कंफर्मेशन आने चाहिए, तब जाके तुम्हारा अटैच कंप्लीट हो रहा है। एंड देन once attach has completed, then you can say your mobile has registered. Correct है? Yes sir. So EMM, NAS, EMM, because whenever anyone asking about the NAS state, so I say you have to tell about their both state, EMM and ESM. Yes. So EMM will be deregistered and ESM will be in the idle state. इसमें मतलब थोड़ा सा तो यहाँ माइंड, और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ इंटरव्यू में। Yes, once the attach complete, so अब अटैच प्रोसीजर कंप्लीट हो गया ना, तो आरआरसी कंटेंट में क्यों रहेगा? अब तुम्हारा आरआरसी चलाएगा आइडल में। नाउ ईएमएम विल बी रजिस्टर्ड और ईएसएम आइडल। अबे आरआरसी कनेक्ट जाएगा तो ना ईएसएम कनेक्ट जाएगा, फिर जब तुम्हें डाटा ट्रांसमिट करना होगा तो आरआरसी कनेक्ट जाएगा, फिर ईएसएम कनेक्ट होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ। ईएसएम अब आइडल में चलाएगा, अभी ईएसएम आइडल में चलाएगा। ईएसएम कनेक्टेड में जाने के लिए कंपलसरी कि आरआरसी कनेक्टेड होना चाहिए। विदाउट आरआरसी कनेक्टेड ईएसएम कैसे कनेक्टेड हो जाएगा? जब तुम्हें डेटा भेजना होगा फ्यूचर में फिर, तो आरआरसी कनेक्टेड में जाएगा, फिर ईएसएम का भी ये कनेक्शन बनेगा और ईएसएम कनेक्टेड हो जाएगा। सिर्फ सिग्नलिंग के लिए आप ईएसएम को कनेक्टेड नहीं कर सकते हो। यार देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के तुम लोग का प्रिपरेशन का पता चल गया। और सद्दाम, तुम तो मेरा विश्वास नहीं तोड़ दिए। सद्दाम अपना रिवीजन के सद्दाम अपना मैक लेयर चैंपियन है। ओके सो ये सारे थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा ध्यान रखो। ये तुम्हारा अटैच प्रोसीजर का द एंड है। मैसेज का लॉग्स, हाँ इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताना है, टाइमर। अभी एंड नहीं हुआ, एक और कॉन्सेप्ट है। So you have seen the attach request message and the attach accept. Now when the UE will start the attach request message at this point of time, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइमर का कॉन्सेप्ट है। मीन्स the moment UE will transmit the attach request message, तो attach request का रिस्पॉन्ड क्या रहा? attach accept। प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ। द रिस्पॉन्स ऑफ अटैच रिक्वेस्ट क्या है? अटैच एक्सेप्ट है। सो व्हेन यू ट्रांसमिट द अटैच रिक्वेस्ट मैसेज, हाउ लॉन्ग यू हैज टू वेट फॉर अटैच एक्सेप्ट। अब मोबाइल अटैच रिक्वेस्ट भेज दिया, होल नाइट नेटवर्क से अटैच एक्सेप्ट नहीं आया, तो क्या मोबाइल वेट करता रहेगा? So there must be some time defined कि within this much time attach accept has to come, otherwise mobile will perform another task or another event. So there is a timer for attach request, means the moment mobile will send the attach request message, you
अभी देखो यूई अटैच रिक्वेस्ट ट्रांसमिट किया. So the moment UE transmit the attach request message, UE will start one timer T3410. इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15 सेकेंड की मैक्सिमम वैल्यू. So the time UE will transmit the attach request message, UE will start the timer T3410. What is the use of this timer? This timer will define कि within this much time यूई को अटैच एक्सेप्ट का रेस्पॉन्स आना चाहिए मैक्सिमम इतने अंदर में. अभी सपोज को मैंने से पूछा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, मैंने तुम्हें एक टाइम दिया कि 2 मिनट के अंदर आप आंसर दो. सो 2 मिनट्स मेरा टाइमर भी स्टार्ट हुआ 2 मिनट्स के लिए, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू. हो सकता है विद इन 5 सेकेंड में आप लोगों के सब चलते हैं, तो विद इन 5 सेकेंड फिर से ओके विल गो. तो क्या हुआ, वाई आई शुड रन माई टाइमर फॉर 2 मिनट्स. मुझे आंसर मिल गया ना, तो माई टाइमर विल स्टॉप एट दैट टाइम ओनली. बट इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर देन मैक्सिमम वेट आई विल वेट 2 मिनट. उसके बाद क्या है, ओके आई विल डू द अनदर, आई विल परफॉर्म अनदर इवेंट. मैं फिर क्या है अब्दुल्ला से पूछूंगा. So same story here. Once the UE transmit the attach request, this timer value is maximum 15 second, means within 15 second UE must receive the response. So यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं. विदिन 15 सेकेंड में यूई को रेस्पॉन्स मिल भी सकता है, आप मुझे विदिन 2 मिनट्स में आंसर बोल भी सकते हो, और हो सकता है बिल्कुल चुपचाप रहो, कुछ नहीं बोलोगे या रेस्पॉन्स मुझे आया भी नहीं. तो सिचुएशंस क्या होगी वो हम देख रहे हैं. सो ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि आइदर यू कैन रिसीव द अटैच एक्सेप्ट बिफोर टाइमर एक्सपायर, you receive attach accept before T3410 expire. ये एक्सपायर होने के पहले आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन 1 है. तो फिर क्या करेंगे, जस्ट मैंने जो भी मूवी का एग्जांपल दिया उसको आप कोरिलेट कर सकते हो. तो मैंने आपको बोला 2 मिनट के में आप आंसर दो सद्दाम कि मूवी देखने चलना है कि नहीं चलना है. अब अभी सपोज को फ्राइडे है, सद्दाम को नमाज पढ़ने जाना है, इमीडिएटली बोल देगा नहीं सर. अब तो दैट्स नेगेटिव इज ऑल्सो आंसर. ये नेगेटिव आया इसका मतलब ये नहीं बोलो कि आंसर नहीं है, मुझे कुछ भी आंसर मिलना चाहिए. हाँ या ना बोल दिया ना, उसने बोला सर नहीं जा सकते हैं. ओके, तो मैं क्या है फिर किसी और से पूछूंगा, मोहित से पूछेंगे. बट ऐसा सोचो, या फिर वो बोलेगा ओके सर आई विल गो. ये दोनों केस को आंसर बोलते हैं. आंसर मतलब ये मतलब कब सिर्फ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव भी आंसर आएगा तो उसके लिए एक मैसेज होते हैं, भी बताऊंगा मैं आपको. अटैच रिजेक्ट, जैसे अटैच एक्सेप्ट आता है वैसे ही एक आंसर होता है अटैच रिजेक्ट, दैट इज अ नेगेटिव आंसर. सो आपको अटैच एक्सेप्ट या रिजेक्ट, इफ एनीथिंग योर मोबाइल हैज रिसीव्ड, तो आपका जो है ये टाइमर सक्सेसफुल हो गया है. लेकिन मेरी बात समझो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आंसर मीन्स ओनली पॉजिटिव आंसर. नेगेटिव आंसर भी आ गया तो आंसर मिल गया ना. प्रॉब्लम कहाँ पर होती जब आंसर ही नहीं मिला. सद्दाम को पूछा मूवी देखने, चुपचाप बैठ रहा है, स्माइल कर रहा है, मेरा टाइम भी खत्म हो गया. तो देन आई विल डू सम अनदर इवेंट ना. So this timer will be used to define how long, within how much time you should receive their response. Response may be positive, response may be negative. So if you receive attach, accept or reject before T3410 expire, तो क्या करोगे आप, टाइमर को स्टॉप करो, अब आंसर मिल गया ना. मैं बोला कि मैं 2 मिनट में मुझे टाइमर रन करना, मुझे सद्दा ने बोल दिया नहीं सर नमाज पढ़ने जाना, मैं नहीं जा सकता हूँ. तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप माय टाइमर. आई शुड नॉट वेट फॉर 2 मिनट. ऐसा नहीं कि टाइमर 2 मिनट्स का है तो मैं 2 मिनट का वेट करता रहूँ. क्यों, बिकॉज देयर इज नो यूज ना, ऑलरेडी बोल चुका सर नो आई कैन नॉट गो. सो हियर टाइमर विल बी स्टॉप. देन
यदि if you get the suppose positive response attach accept, then what will happen? अब तुम्हें एक बार क्या सामने देखो टूल सा क्लास अटेंड करते हैं, उसमें चल रहा है क्वालकॉम टूल का, तुम घर में बैठ के मस्ती कर रहे हो। देखो सो तुम्हें अटैच एक्सेप्ट मिल गया, सी हियर। तो व्हाट यू विल परफॉर्म, तो टाइमर को स्टॉप कर दो, फिर पूछेगा फिर यूई क्या करेगा, देन यू विल सेंड द आरआरसी कनेक्शन रीकॉन्फिगरेशन कंप्लीट मैसेज, मींस यहाँ से पड़ी जाएगी क्लियर। So timer stop and then UE will transmit, UE send RRC connection reconfiguration complete। अब है कि आंसर नहीं मिला, दिस इज द सेकेंड पार्ट। योर टाइमर मीन्स 15 सेकेंड टाइम एक्सपायर and UE could not receive the answer। So if UE could not receive the answer, then क्या क्या करना समझो आप। Increase the counter variable increase the counter variable attach attempt count, AS means attach attempt count by 1। सो एक काउंटर वेरिएबल होता है इन द स्पेसिफिकेशन दे गिवन है, डब अटैच अटेम्प्ट काउंट। व्हाट इज दिस, दिस इज अ काउंटर वेरिएबल। इसका क्या काम होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अटैच रिक्वेस्ट विल बी रीट्रांसमिटेड। अब अटैच उसको नहीं रिस्पॉन्स मिला तो हमको सद्दाम ने कुछ आंसर नहीं दिया, टाइम एक्सपायर हो गया। अब चलो उसको मैं एक बार फिर से पूछूंगा, सद्दाम बोलना चलते हैं मूवी देखने के नहीं। और सद्दाम बस एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तुम आज चला ना 10 बजे मूवी देखने के लिए। सेकेंड टाइम पूछूंगा, अगेन थर्ड टाइम पूछेंगे टाइम एक्सपायर होने के बाद। सो वी नीड वन वेरिएबल व्हिच विल कीप काउंटिंग कि हाउ मेनी टाइम्स आई एम आस्किंग टू सद्दाम। सेम वे हियर, इफ अटैच रिक्वेस्ट आंसर नेटवर्क ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो मोबाइल फिर से ट्रांसमिट करेगा। सो कितना टाइम मोबाइल रीट्रांसमिट कर रहा है उसके लिए एक वेरिएबल होता है attach attempt count that will keep counting that how many times attach request message is transmitting। सो अभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अटैच अटेम्प्ट काउंटर को 1 से इंक्रीज करना, जो भी वैल्यू होगी तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अटैच अटेम्प्ट काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। ये तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब उसका वैल्यू 1 हो गया, हम इंक्रीज कर दिए बाय 1। नाउ अटैच अटेम्प्ट काउंट विल बी 1। देन चेक, चेक करो कि वेदर अटैच अटेम्प्ट काउंट लेस देन 5, ये वैल्यू 1 से बढ़ाने बाद क्या 5 से कम है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स। ये 2 ही ऑप्शन होंगे ना, तुम चेक करो कंडीशन से कि ये जो अटैच अटेम्प्ट काउंट की वैल्यू अभी है वो लेस देन 5 है, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यदि ट्रू है तो एक और टाइमर स्टार्ट करोगे आप, टाइमर T3411 which value is the 10 second।
एक टाइमर स्टार्ट होगा जिसकी वैल्यू 10 सेकेंड की है। प्लीज लिसन केयरफुली, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए। इस 10 सेकेंड में यूई कुछ भी नहीं करेगा, यूई विल नॉट ट्रांसमिट एनी मैसेज, चाहे वो आरआरसी मैसेज हो, कोई भी मैसेज यूई इस टाइम ट्रांसमिट नहीं करेगा। दिस टाइम यूई विल वेट दैट दिस टाइमर शुड एक्सपायर। ये टाइमर एक्सपायर होने के बाद, once the UE will expire, this timer expire, then again UE will retransmit the attach request message. Then again UE will retransmit attach request message, फिर ट्रांसमिट करो, फिर सेम स्टोरी, फिर T3410 स्टार्ट कर देना 15 सेकेंड के लिए। यदि तुम्हें रिस्पॉन्स मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आरआरसी कंडीशन रिकॉन्फिगर पहुंच जाओ। फिर नहीं मिला तो अटैच अटेम्प्ट काउंटर को फिर 1 से बढ़ाओ। पहले क्या होता था 1 हो चुका था, अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चेक करो 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, फिर ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगेन एक्सपायर हुआ फिर रिट्रांसमिट करो अटैच रिक्वेस्ट, फिर सेम स्टोरी T3410 स्टार्ट करो, आंसर मिला फाइन, तो ये कहानी छोड़ दो, इधर आगे बढ़ जाओ आप कॉल फ्लो में। फिर नहीं मिला, नहीं मिला तो इधर आने का, फिर ये अब 3 हो जाएगा। ऐसा चलता रहेगा टिल मैक्सिमम 5। यदि 5 हो गया, फॉल्स हो गया, तब एक टाइमर स्टार्ट होगा T3402। देन आपका सीरियस प्रॉब्लम है, शायद आपका रॉन्ग PLMN में बार बार जा रहा है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये टाइम होता है मैक्सिमम वैल्यू 12 मिनट का, नॉट सेकेंड का। फिर जो है PLMN लिस्ट को डिलीट करो, गुट्टी डिलीट करो, मतलब आपका वैलिड गुट्टी नहीं है इसलिए अटैच नहीं हो रहा। ये सारा वैल्यू डिलीट करके देन अगेन फिर से अटैच प्रोसेसर बिगनिंग से, फिर A=0 से, देन बिगनिंग से आपका फिर अटैच प्रोसेसर स्टार्ट होता है। अटैच तो होना ही होना, जब मोबाइल आपका अटैच नेटवर्क में नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट कोई प्रोसीजर नहीं होगा। तो अटैच तो ऐसा प्रोसेसर आपको फाइनली तो होना ही होना है, नहीं हो रहा है अटैच फाइनली देयर इज प्रॉब्लम। सो इसलिए टाइमर है कि विदिन इतने टाइम के अंदर आप फिर से अटैच करो। इसलिए तो कभी कभी ऐसा होता है, जरूरत में इस टाइम ज़्यादा नहीं पड़ती है, सम टाइम्स पहले एक्चुअली यूज होती थी इसका। आप कभी नोटिस किए होंगे कि सपोज यू ऑल्सो हैविंग द एयरटेल नेटवर्क एंड योर फ्रेंड ऑल्सो हैविंग द एयरटेल नेटवर्क, और दोनों आप एक साथ कभी सेलर पार्किंग में गए हो मॉल का या कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, दोनों मोबाइल में दिखा दिया आउट ऑफ कवरेज। आप दोनों फ्रेंड का सेम नेटवर्क एयरटेल, अभी वो आपने रोड के अंदर आए, रोड पे आए, आपका फ्रेंड का कवरेज दिखा रहा, तुम्हारा मोबाइल में कवरेज दिखाई नहीं रहा है। सेम नेटवर्क है, एक में दिखा रहा कवरेज, तुम्हारे में नहीं दिखा रहा है, और बहुत देर तक नहीं दिखाता है। फिर क्या करते थे आप लोग, याद करो, मोबाइल को फिर से ऑफ करके ऑन कर देते। क्यों? ये तुमने ऑफ करके ऑन किया ना, तो फिर तुम्हारा पावर ऑन से और अटैच बिगनिंग से स्टार्ट होता था, तब देखो दिखा देता था नेटवर्क। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे, तो लंबा टाइम लग जाता है आपको अटैच होने में। इसलिए उसका सोल्यूशन है कि आप ऑफ करके ऑन करो, फिर आपका अटैच हो जाता है। सो ये टाइमर का कॉन्सेप्ट अब ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये टाइमर का यूज क्या है, T3411 का, बाकी तो यूज समझ में आया, इसका यूज क्या है, ये एडिशनल इतना टाइम वेट क्यों कर रहा है एक्सपायर होने के लिए? ये एक्चुअली नेटवर्क ने आपका भी अटैच आंसर दिया नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में, तो ये टाइम एक एडिशनल 10 सेकेंड टाइम दे रहे नेटवर्क को। 10 सेकेंड में कुछ प्रॉब्लम है तो नेटवर्क फिर रेक्टिफाई करेगा, फिर अटैच रिक्वेस्ट भेजो। क्योंकि मैंने सद्दाम को भेजा अटैच, मूवी देखने चलेंगे, बोल दिया नहीं, तब हो सकता है कुछ उसको टाइम देते हैं सोचने के लिए। इसलिए मैं सद्दाम बोला कभी प्रपोज क्यों नहीं करते थे, कभी प्रपोज करते होता चलो ठीक है तुम 10 दिन टाइम लेकर सोचो फिर मैं बोलता हूँ। तो वही बात है, दिस इज एडिशनल टाइम गिवन टू द नेटवर्क। उतने टाइम में नेटवर्क में कुछ इशू चल रहा है, फेल्योर चल रहा है, कुछ डाउन है, तो उतना टाइम देने के बाद फिर नेटवर्क को मोबाइल भेजेगा। सो दिस इज द एडिशनल टाइम गिवन टू द नेटवर्क। सो ये आपका टाइमर का फ्लो चलता है अटैच में। आई होप अभी तो समझ में आया होगा मोहित। हाँ सर।
सो ये प्लीज़ रिवीजन कर लो। फिर अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है डिटैच और ट्रैकिंग एरिया अपडेट, वो बहुत छोटा टॉपिक है, एक ही क्लास में जाएगा बिकॉज अब कुछ बचा नहीं। और वो दोनों खत्म करने के बाद में फिर आपको नेगेटिव सिनेरियो बताऊंगा अटैच रिजेक्ट का। रिजेक्ट में कौन कौन से वजह रिजेक्ट होते हैं, और वो सब एक्चुअली प्रॉब्लम बग्स ना आप इंडस्ट्री में देखते हो, कभी कभी दिखाएगा PLMN नॉट सेलेक्टेड, रॉन्ग PLMN नॉट आइडेंटिफाइड, यूई नॉट आइडेंटिफाइड। वो सब क्या है वो हम पूरा नाइस का तीनों प्रोसेस पढ़ने के बाद देखेंगे। लेकिन प्लीज़ जो है आप रिवीजन कीजिए। कल्पेश आप पहले का वीडियो रिवाइज करो प्लीज़। ये कन्फ्यूजन रह गया ना कि वो बेसिक था तो सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट खत्म हो रहे हैं। कल्पेश सर। उसको रिवीजन कर लो कल्पेश, हाँ ठीक है? सर। वो रिवीजन करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, बिकॉज आप एग्रीड नहीं होते हो लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हारा वायरलेस में, तो उसको पढ़ो क्योंकि आप हार्ड वर्क करो। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी पूरा सब कुछ तुमने मैक पढ़ लिया, RRC अभी पढ़ लोगे और पहले का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो तुम्हारा बिल्ड नहीं होगा, फिर इंटरव्यू में मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, चलो या कल मिलता हूँ। हाँ बोलिए सर। सर ये पाइथन का क्लास कल इवनिंग में हुआ था, आज इवनिंग में होगा क्या हम लोग का? स्प्लिट हुआ बैच क्या? पाइथन क्लास क्या हुआ? कल इवनिंग में ले रहे थे 8:30 बजे। कल इवनिंग में हुआ था? ऐसे ऐसे क्या मॉर्निंग में हुआ था क्या? हाँ वैसे सुबह 6 बजे हो रहा था, आज भी नहीं हुआ मेरा पाइथन का क्लास सर। पाइथन नहीं हुआ आज? नहीं मेरे को मतलब वो मैक्सिमम कॉल हो जाने के बाद फिर मेरा वो ज्वाइन ही नहीं होता है सर। नहीं ठीक है मैं बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।